So now dear friends, let we discuss the new question and very important question. Define the transport number. Explain Hitof's method for determination of the transport number. The question can be arrived in the next way or the second way. What is meant by the transfer number of the anion, transport number of anion? How is it determined by the moving boundary method? So let me see how we will just give the answer to it. So first of all, what is the transport number? What happens during electrolysis? The current is carried by the anions and cations, we know. The amount of current carried by each ion is proportional to its speed. जितना ज़्यादा स्पीड होगा एनायन का और कैटायन का, तो उस स्पीड में क्या करेगा, वो करंट को कैरी करेगा, एक छोर से दूसरे छोर में क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, है ना. द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर. टोटल करंट का वो जितना पार्ट कर रहा है ना, आउट ऑफ टोटल करंट एक जो है आयन जितना कैरी कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर और द ट्रांसफरेंस नंबर, or again called as the Hitof's number. Greater the speed of the ion, greater the amount of current it will carry. जितना ज़्यादा स्पीड है उतना क्या करेगा, वो करंट कैरी करेगा. सिंपल है ना. मजदूर मान के चले 10 मजदूर है, उसमें से 2 लोग क्या करें, फटाफट काम करें, स्पीड अपली, ठीक है ना, ईटेड होने का काम कर रहे हैं ब्रिक्स. तो क्या करेगा, 2 मजदूर अगर धीरे काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में अगर उन्होंने 20 ईंटों को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया, जो स्पीड अपली काम करेंगे वो 1 मिनट में 40 ईंटों को क्या करेंगे, एक से दूसरे पॉइंट में वो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि उनका हिटऑफ नंबर ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है या ट्रांसफरेंस नंबर ज़्यादा है दोस्तों, है ना. देखिए, ग्रेटर द स्पीड ऑफ आयन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट इट विल कैरी विथ इट एंड हैंस ग्रेटर विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर. ज़्यादा, अभी जो एग्जाम्पल दिया, ज़्यादा वो करंट कैरी करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज़्यादा होगा. लेट म्यू ए एंड म्यू सी और द यू ए एंड यू सी बी द स्पीड ऑफ एनायन एंड कैटायन. एनायन की स्पीड यू ए और कैटायन की स्पीड यू सी. लेट यू ए एंड यू सी बी द स्पीड ऑफ द एनायन एंड द कैटायन. देन करंट कैरीड बाय द एनायन, दैट इज द यू ए, इज इक्वल्स टू के यू ए. करंट कैरीड बाय द कैटायन is directly proportional to the UC, that is KUC. Now the total current carried will be the what? KUA plus KUC. So just taking the common K, you will find the K into UA plus UC. Now what will be the then transport number of the anion? Na is equals to KUA upon K into UA plus UC. So Na is equals to UA upon, because k get cancel na, so UA upon UA plus UC is will be the transport number for the anion. And similarly the transport number of the cation will be what? Nc is equals to UC upon UA plus UC. Now the sum of the transport number of the anion and cation of an electrolyte is always unity, because the total will be the unity, na, completeness. So UA plus UC is equals to 1. Now as far as the Hitov method concerned, in this method an aqueous solution of the concerned electrolyte is subjected to the electrolysis. What? The aqueous solution of the whatever the electrolyte is taken, it taken for the what? Electrolysis process in an apparatus, which is, you can see, divided into the what? There the compartment, that is cathode and the cathode, anode and the middle compartment. You can see over here the voltmeter or the colorimeter is the attached over there. The experimental solution you will find with the variable resistance is connected to the 2 chamber. Multimeter is there, multimeter. So in this way, in the Hitov method, the arrangement as shown below, you can find the 2 chambers, the U-like tube is there, the experimental solution is there. So that is the way you can find the Hitov's method. Now in this, the transport numbers are generally determined by an apparatus of the type that shown in the figure. It consists of 2 vertical glass tubes having a bulb at the bottom and connected together through I am repeating this one again, tube, what we had seen previously in the previous slide. All the 3 tubes are provided with the stopcocks at the bottom. A silver anode is sealed in a glass tube
and small portion of it is exposed to the solution in the form of spiral. Cathode is a piece of freshly silvered foil, and the apparatus is connected to a copper or a silver voltmeter in a series. Now you will find there the apparatus is filled with a standard solution of the silver nitrate. आप देख सकते हो दोनों साइड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट उसमें फिल्ड है, भरा हुआ है ना. और जब हम लोग क्या करते हैं, अ स्टेडी करंट ऑफ 0.01 एम्पेयर इज पास्ड फॉर नियरली 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के लिए स्टेडी करंट ऑफ 0.01 एम्पेयर अगर हम पास करते हैं एट द एंड ऑफ दिस पीरियड फॉर नियरली 2 to 3 आवर्स, ठीक है ना, आखिरी में 2 से 3 घंटे के लिए. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड अ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द एनोड लिम एंड इट्स वेट इज डिटरमाइंड. मतलब एनोड के नीचे से हम क्या है जो मटेरियल जमा होगा उसको निकाल कर अगर हम उसका वेट लेते हैं और इट इज़ देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड पोटेशियम थायोसाइनेट. स्टैंडर्ड पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ अगर हम क्या करते हैं उसका टाइट्रेशन करते हैं ना, पता है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन हमने देखा है ना. वैसे सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना. तो ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल निकालेंगे हम उसका टाइट्रेशन करेंगे तो हमें इससे क्या पता चलेगा, उसके रेफरेंस से द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन इट ये पता चलेगा हमें, है ना. द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन द वोल्टामीटर इज नोटेड. तो वोल्टामीटर से हमें वो पता चलेगा. इफ़ कॉपर वोल्टामीटर इज यूज्ड द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज मल्टीप्लाइड बाय, जो फैक्टर मैं आपको दे रहा हूँ वो मल्टीप्लाई करना है किससे, 108 बाय 31.5 टू डिटरमाइन दिट्स इक्विवेलेंट. किसका इक्विवेलेंट, सिल्वर का. सिल्वर इक्विवेलेंट आपको इससे मिल जाएगा, ये सिल्वर के लिए, ठीक है. 108 बाय 31.5, तो आप इससे कैलकुलेट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, सिल्वर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों. तो अब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए स्टेटमेंट मैं आपको पहले बताता हूँ जो लिखा है ना. Since the change in the concentration of the solution is accompanied by change of density, of course होगा ही ना, जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाएगा तो डेंसिटी में फ़र्क आएगा और उसके साथ साथ वॉल्यूम में भी फ़र्क आएगा, है ना. हैंस चेंज इन वॉल्यूम्स द लॉस ऑफ मटेरियल मस्ट बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू अ डेफिनेट वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट आफ्टर करंट हैज़ पास्ड. मतलब जो करंट पास होने के बाद देखो चेंजेस हो रहे, क्या चेंजेस हो रहे हैं कि मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो रहा है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी में फ़र्क पड़ रहा है ना. जो भी चीज़ है, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो करंट पास होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का जो है वेट वो भी लेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मदद मिलेगी दोस्तों. अब देखिए, लेट x gram be the weight of the silver deposited in the silver voltmeter and let n gram of anode, ठीक है ना, x है वो n, n gram of the anode solution contain b gram of the silver nitrate. Now after the experiment, ठीक है ना, the weight of the water is equals to 1 minus b gram होगा, क्योंकि टोटल जो यूनिट है 1 है ना, उसमें से माइनस b ग्राम होगा. और इफ़ a minus b gram of water contains c gram of the silver nitrate, a माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर, उसमें अगर सी ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है इन द बिगिनिंग, देन इंक्रीज इन वेट इजिकल्स टू क्या होगा, बी माइनस सी, टोटल जो है ना, बी माइनस सी ग्राम ऑफ क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा. सो बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 170 ग्राम ऑफ सिल्वर, दैट इज इक्वल्स टू वाई ग्राम ऑफ द सिल्वर. ये हम मान के चलते हैं. सपोज इफ़ नो सिल्वर हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द एनोड, इंक्रीज वुड हैव बीन x gram, the total deposit in the voltmeter, hence fall in concentration due to the migration of silver ion is equals to x minus y gram. Hence the transport number of the silver positive is equals to क्या होगा, x minus y upon x, and that of the nitrate is equals to 1 minus x plus y upon x, ठीक है ना. तो ये आपका होगा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों. So that is what all about the transport number of ion and it is determined by the what, Hitof's method. हम लोग है ना, ट्रांसपोर्ट नंबर बाय द Hitof's method इस तरीके से किया जाता है इसको, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.